لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على آلائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وولایتهم ودلالتهم وعدشهم اجمعین. اما بعد فقط واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. صلوات پڑھ دے محمد. ماتمداران سید الشہداء موانیان حیدر کردار، آج محرم کی آج تاریخ منسوب اور باب الحوائے سے جسے عباس کہتے ہیں. علی عبداللہ کعبہ جو گفتگو کر رہے تھے بالکل وہی سے، چونکہ وقت نہیں ہے کہ آپ کو میں تفصیلی باب الحوائج کے بارے میں کوئی گفتگو کروں، لیکن یہ کون ہے جس کو عباس کہتے ہیں؟ قبلہ بیٹھے ہیں. عباس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جب پوچھا گیا যখন জিজ্ঞেস করা গেল যে আব্বাসের মানে কি, আব্বাসের অর্থ কি, تو پوچھنے والے نے کہا عباس کا مطلب شیر کا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایسے نہیں، مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے. کل رات سے مسلسل جگ رہا ہوں، کل رات سے ابھی تک سویا نہیں، مجلسیں پڑھ رہا ہوں کل رات سے. آپ کو ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. آج وہ فضائل، قبلہ بھی فضائل سنا رہے تھے، ایسا نہیں کہ میں کچھ الگ فضائل سنا دوں گا، لیکن چونکہ تاریخ یہ ہے کہ جب مطلب پوچھا گیا کہ عباس کے مطلب کیا ہے تو کہا گیا عباس کا مطلب شیر کا ہوتا ہے. دیکھیے یہ عباس کا مطلب شیر کا نہیں ہوتا ہے. عباس کے اس نام کو کہتے ہیں، شیر کی کیفیت کو عباس کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اگر ایسے ہی چپ رہیے گا تو پھر میں بھی چپ ہو کر پڑھ کے چلا جاؤں گا. کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن جب اتنی دور سے آیا ہوں کچھ آپ کو سنانا ہے اور آپ کو کچھ سننا ہے. نعرہ حیدری، 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 نعرہ السلام. اب یہ ہے کہ شیر کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیکھیں شیر، اسد جو ہوتا ہے، اسد کو شیر کہتے ہیں. اصل شیر جو ہوتا ہے، اسد ایک شیر کو کہتے ہیں. شیر کی کیفیت. غضنفر یہ بھی ایک شیر کی کیفیت ہے. زیغم یہ بھی ایک شیر کی کیفیت ہے. زرام یہ بھی ایک شیر کو کہتے ہیں. حمزہ اسے بھی ایک شیر کو کہتے ہیں. عباس اسے بھی شیر کہتے ہیں. حیدر اس کو بھی شیر کہتے ہیں. یہ سب شیر، لیکن یہ شیر کی کیفیت ہے. ایک سال بات پڑھے محمد والے.
উর্দু में समझ पा रहे तो आप लोग दोनों हाथ में रहाई दारी আপনাদের মতো আমি বাংলা বলতে পারবো না, আমি উর্দুতে যা জিনিসটা পৌঁছাতে পারবো বাংলাতে পৌঁছাতে পারবো না। रहाई दारी। तो ये है कि शेर का मतलब क्या होता है, ये सब शेर है। शेर की कैटेगरी सिचुएशन बांग्ला में क्या कहते मालूम नहीं, श्रेणी। तो असद कैटेगरी जैसे इंग्लिश में कहते हैं श्रेणी, ये सब शेर है। असद भी शेर है, ज़ैलम भी शेर है, ज़रगाम भी शेर है, हमजा भी शेर है, अब्बास भी शेर है, हैदर भी शेर है। लेकिन कौन सा शेर है, जब शेर अपने गुफा में चुपचाप पड़ा रहता है, इसको असद कहते हैं। जरा सा हाथ उठा दीजिएगा, हौसला मिलेगा। जब असद अपने गुफा में चुपचाप आराम से बैठा रहता है, इसे असद कहते हैं। जब ये शेर अपने गुफा से उठकर अंगड़ाई लेता है तो इसको ज़ैलम कहते हैं। सलावत पढ़े ना मोहम्मद, ऐसा नहीं बेदार होकर सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई हम तो यहाँ भी आजाद हैं, हम वहां भी आजाद हैं। हमारा हाथ ऐसे नहीं बनता है, हमारा हाथ ऐसे खुला हुआ है, कब्र में जाने के बाद भी खुला रहता है। कब्र में क्यों हाथ खोल देते हैं, कब्र में हाथ ही नहीं खोलते हैं, कफन को भी खेल देते हैं। शायर कहता है इसके मौला में बहुत रोल दिए जाते हैं, वो भी तोहफे हमें अनमोल दिए जाते हैं। हाथ मातम के लिए, हाथ नारे के लिए, कब्र में आजाद रहे इसलिए बंदे कफन खोल दिए जाते हैं। हम तो ऐसे रहबर के मानने वाले हैं जो यहाँ भी हमारे साथ है, वहां भी हमारे साथ है, यहाँ भी साथ देता है, वहां भी साथ देता है। यहाँ कहते हैं या अली मुश्किल कुशा आ जाता है, वहां कब्र में पहुंचते हैं फौरन मदद के लिए आ जाता है। हम ऐसे मौला के मानने वाले हैं। उसी के लाल को अब्बास कहते हैं, उसी के लाल को अब्बास कहते हैं। कबला सुने, कबला आप करीब आ जाए। अच्छा सलाम पढ़े मोहम्मद वाले कबला के इस्तकबाल के लिए सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले। जरा सा मैं एक तबहीर पढ़ा रहा हूं जहां आपको लेके जाना है। একটা ক্রিয়েট করছি সিচুয়েশন যেখানে আমি আপনাকে নিয়ে যাব इंशाअल्लाह। तो असद जब अपने खैमे में शेर चुपचाप सो रहा हो उसे असद कहते हैं। जब ये उठकर अंगड़ाई ले ज़ैलम कहते हैं। जब अंगड़ाई लेकर चलने लगे तो ज़रगाम कहते हैं। चलकर जब अपनी शिकार की तरफ आंखों से देखे गज़नफर कहते हैं। जब अपने शिकार पर हमला करके उसे अपने हाथों में पकड़ ले, इस तरह जकड़ ले कि शिकार के सांसें रुक जाए, उसे अब्बास कहते हैं। तो जबान काट लेते थे, वो दौड़ चला गया, कमीसम की जबान काट ली, वो दौड़ चला गया, हजम ने मोदी की इलाज की जबान काट ली। अब वो दौड़ नहीं रहा है, अब तुम जबान नहीं काटोगे, हम जबान काट लेंगे। इसलिए वो दौर आ गया है नौजवानों, वो दौर आ गया है कि चिराग दस्ते हवा पे
কি হলো? একটা দিয়া যেখানে খুব হাওয়া চলছে ওইখানে জ্বালিয়ে दिलाम, चला 10 से हवा पे जला दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाए, जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं चलो अली का कसीदा वहां पढ़ा जाए। वो दौड़ गया सलवार पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब सुने, जब शेर अपने शिकार को, उसके बाद चल लो, जब शेर अपने शिकार को अपने हाथों में इस तरह कब्जे में जकड़ ले कि उसकी सांसें रुक जाए, सांस थम जाए, रुक जाए, इस कैफियत को क्या कहते हैं? इस कैफियत को क्या कहते हैं? मिलोगे? इस कैफियत को क्या कहते हैं? मिलोगे? इस कैफियत को क्या कहते हैं? यही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े 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 करके दूसरे जानवरों को खैरात में बांट दे, उसे हैदर कहते हैं। अब्बास का मतलब क्या है? इसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो हकीकत में खुद बहादुर हो, यानी जो था बहादुर, जो हकीकत में खुद बहादुर हो, बेशक उसका दिलेर होता है। दिलेर नाम जानते हो? बहादुर मतलब छेले, बाप अगर शक्तिशाली जो उन्होंने छेले हो, शक्तिशाली हो, जो हकीकत में खुद बहादुर हो, बेशक उसका दिलेर होता है। क्यों ना अब्बास होते मिसले अली, शेर का बच्चा शेर होता है। क्यों ना अब्बास होते मिसले अली, शेर का बच्चा शेर होता है। उम्मुल बनीन से अख्द हुआ, सुने, उम्मुल बनीन से अख्द हुआ। कबला भी पढ़ रहे थे, बिल्कुल अब देते हुए, यानी कि मजलिस खत्म नहीं हुई है, मजलिस वहीं से शुरू हुई है फिर से। उम्मुल बनीन क्या कहा था? भाई से क्या कहा था? अपना सभी जाने, अकील एरकम एक खानदान তুমি গিয়ে তালাশ করো যেখান থেকে একটা মেয়েকে আমি বিয়ে করব, যেখানে একটা শক্তিশালী ছেলে আমি পাই। यही है ना? काके जिस করেছেন, काके বলেছেন जनाब हजरत अकील के, भाई ऐसे खानदान में शादी करो, कराओ जिससे बहादुर बेटा पैदा हो, जिससे बहादुर बेटा पैदा हो, जिससे बहादुर बेटा पैदा हो। ये कौन मांग रहा है? जो ऐनुल्लाह है। कौन मांग रहा है? जो वजहुल्लाह है। कौन मांग रहा है? जो लिसानुल्लाह है। कौन मांग रहा है? जो जनमुल्लाह है। कौन मांग रहा है? जो यदुल्लाह है। वो अली मांग रहा है। ऐसे बहादुर खानदान में एक रिश्ता हो जिससे बहादुर बेटा पैदा हो। अकील ने क्या कहा? अकील बोलें भाई अली একটা খানদান আছে, ওই খানদানকে আমি চিনি, ওই খানদান এখনো এই মদিনা বাইরে আছে, हम वहां जा रहे हैं। ऐसे बहादुर उसके होते हैं कि बड़े बड़े अरब के वीर, बड़े बड़े अरब के पहलवान अपनी तलवार पे उनके बादशाहों का नाम लिखा करते हैं। এরকম একটা খানদান আছে, বনি কালাব সিচুয়েশন টাইম অনেক কম আছে। হযরত আকিল के যেই ফাতিমা কালাবিয়া বাবা
تو جانیں کی بول رہے ہیں؟ آقا آپ کیوں آ گئے؟ سردار آپ کیوں آ گئے؟ ہم کو بلا لیا ہوتا، ہم آپ آ جاتے۔ آپ تو ہمارے سردار ہیں، آپ تو سردار ہیں، آپ مکہ کے رئیس ہیں، ہمیں بلا لیا ہوتا۔ ہم نہیں، اکیلے کا ہم اپنے کام کے لیے آئے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ ایک رشتہ لے کر آئے ہیں، ایک میجر ایسی، ایک رشتہ نہیں ہے ایسی۔ وہ کس کے لیے؟ اکیلے یہ فاطمہ کرے بھائی بابا جی رسلیں ایک خیمہ چوری شروع بھالو خیمہ، وہی خیمہ بنیے کی پوشلیں آپ یہاں بیٹھئے، کس لیے آئے ہیں؟ کہ ایک اچھے رشتے کے لیے آئے ہیں، اچھی بیٹی کے لیے آئے ہیں۔ کہا کس کی بیٹی کے لیے؟ کس کا رشتہ ہے؟ کون کس کا رشتہ ہے؟ کہ وہی جو کابل میں پیدا ہوا، وہی جو حسنین کا بابا ہے، وہی جو جبریل کا استاد ہے، وہی جو آدم کے ہاتھوں سے بولا ہے، وہی جو ستاروں کی خندقیں لگائی ہے، وہی جو سورج کو پلٹایا ہے، وہی جو ستارے کو بلایا ہے، اس علی کا رشتہ لے کر آئے۔ کس کے لیے لے کر آیا؟ کہ تمہاری بیٹی کے لیے لے کر آیا، فاطمہ کلابیہ کے لیے۔ ہاں کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ سب آپ پڑھے محمد والے بابا پہ ایک مل کے سلام اور پڑھے محمد والے محمد پہ مجھے سلام ہے۔ تو ہم آئے ہیں اس علی کا رشتہ لینے کے لیے۔ فاطمہ کلابیہ کے بابا نے کہا اتنا اچھا رشتہ، پوری کائنات کا امیر ہے، امیر کائنات، علی 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 کا رشتہ میرے بیٹی کے لیے، میں راضی ہوں۔ جانتے ہیں جناب عقیل نے کیا کہا کہ تمہارا راضی ہوئے کنو لابھ ہوئے نا، میں نے کہا یہ آگے میں کے چیز کرو کہ میں راضی آچے گے نا۔ سروات پڑھ دے محمد والے۔ یعنی شریعت محمدی میں ہے کہ بچی کا رشتہ کرو تو بچی کی مرضی ضرور پوچھو۔ سلام پڑھ دے محمد والے۔ میری مرضی نہ پوچھو، زبردستی نہیں، اس کو بھی حق ہے چننے کا، اس کا شریک حیات بنے گا، وہ اس کے ساتھ اس کی زندگی گزارنی ہے، لیکن غلط بھی ہونا نہیں چاہیے۔ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ غلط بھی ہونی چاہیے۔ میں بھائی تمہیں راضی ہونے کو لابھ نہیں، میں کہنا اما بولے ہوئے نا گھر میں کے جگیش کرو، میں راضی تھا گلے تو ہون اے رشتہ تھا منظور ہو گئے۔ ذرا آشلین فاطمہ کلابیہ بابا کون خیمہ تھے؟ آشلین اس گھر میں آئے، اس خیمے میں آئے جس میں فاطمہ کلابیہ کی والدہ بھی ہے اور فاطمہ کلابیہ بھی ہے، یعنی حضرت ام المؤمنین حضرت عباس کی ماں، وہ بھی اسی گھر میں ہے، فاطمہ کلابیہ بھی ہے۔ جی آشلین نا ام المؤمنین بابا انہاں مکھے تو خون دیکھ لیں کہ انہیں آج کے تو مکھے کا جلالہ چھے، مکھے کا خوشی آچھے، انہیں کا اتنے خوش بھی آچھے۔ جی اس کو کیا بات ہے، اتنا خوش کیوں ہے آج؟ کیا بات ہے، اتنے پہ چہرے پہ چلا کیوں ہے، اتنا آپ خوش کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کا رشتہ آ گیا ہے، کا رشتہ آ گیا ہے، بتاؤ تو ہمارا وہ آئی تھے، ہم بھی کرے چھے، آپ لوگ بھی کرے چھے، میرا تو جس کو کا رشتہ اس چھے، کا رشتہ اس کہ کوئی بادشاہ رشتہ نہیں اس سے لگی، کسی بادشاہ کا رشتہ لے کے آیا ہے جو اتنا خوش ہو۔ تو جانتے ہیں کیا کہا ہے فاطمہ کلابیہ کے بابا نے کہ پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر، پھر بتاؤں گا کہ کس بادشاہ کا رشتہ آیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد، کس بادشاہ کا رشتہ آیا ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، جا کے پوچھا کس کا رشتہ آیا ہے، کہا حلال مشکلات علی کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آ گیا۔ اس کے بعد اب فاطمہ کلابیہ سے پوچھا گیا، فاطمہ کلابیہ بتاؤ کہ تمہارا رشتہ منظور ہے؟
अली से शादी करोगी, अली का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। तो फातिमा कलामिया ने कहा जाके मेरी माँ से बोल देना, इसलिए कि मैंने ख्वाब में देखा है। क्या ख्वाब में देखा है? कि ख्वाब में देखा है कि रात में खातूने जन्नत आई थी, खातूने जन्नत ने हमें सजाया है, हमें संवारा है, हमें दुल्हन बनाया है, अब बना के हमारे माथे को चूमा है और चूम कर कहा है, ए उम्मुल बनीन मुबारक हो, तुम मेरे बेटे अब्बास की माँ बनने वाले हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। अब ये रिश्ता तय हो गया, बस टाइम भी नहीं है, रिश्ता तय हो गया। हजरत अब्बास दुनिया में आए। हजरत अब्बास दुनिया में आए। ये कौन अब्बास है जिसका आप मसाइल पढ़ते हैं? शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दरे अब्बास से हटकर कहीं इतना नहीं मिलता, वो दरिया लेके जाता है जिसे खतरा नहीं मिलता। दरे अब्बास से हटकर कहीं इतना नहीं मिलता, वो दरिया लेके जाता है जिसे खतरा नहीं मिलता। लबों को गर्दरी तहरीस का बोसा नहीं मिलता, हमें अल्फाज मिल जाते मगर लहजा नहीं मिलता। मेरे अब्बास के चुल्लू में आखिर कितना पानी था, जमाना डूब जाता फिर भी अंदाजा नहीं मिलता। उम्मुल बनीन ब्याह करके आ गए। अब यहां आने के बाद सुनिएगा कैसी माँ है, कैसी तरबियत की है उम्मुल बनीन ने, कैसी तरबियत की है वो। ये कौन बन के आई है? अली की शरीक हयात बन के नहीं। हमारी माँ बहन भी बैठी है। माँ बहनों আপনারা শুনছেন, মজলিস শুনছেন, लेकिन हजरत उम्मुल बनीन কি কিরদার ছিল যখন উম্মুল বনীন বিয়ে করে মওলাই কায়নাতের বাড়িতে যখন আসতে শুরু করলেন, तो चारदिके बनी हाशिम में औरतें रह ছিলেন। बनी हाशिम का नौजवान था, चारों तरफ घेरता हुआ एकदम ऐलान करता हुआ, खबरदार कोई नहीं आना, अली की बीवी अली की शरीक हयात अपने घर जा रही है। लेकिन ये उम्मुल बनीन कौन है? अली की बीवी बन के आई है ना, अली की शरीक हयात बन के आई है ना। आने के बाद उम्मुल बनीन आने के बाद पहले दहलीज़े सैयदा पे गई, सर को रखा और सर को रखने के बाद हाथों को उठाया और उठा के कहा, ए परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि उस घर में भेजा है जिस घर में फातिमा रहा करती थी। अगर अब हम न रोएंगे तो कब रोएंगे? आज मुहर्रम की 8 तारीख हो गई है। আমাকে বলা হয়েছে একটু বেশি মশায় পড়বে, বেশি। ঠিক है, हम पढ़ेंगे मसाइल में इंशाअल्लाह। তারপরে আরবে দস্তুর কি ছিল, যখন কোনো মেয়ে বিয়ে করে আসতো তো বাড়িতে আসলেই না একটা বড় বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান করে ওখানে একটা কানের বিশি দেওয়া হতো। ওখানে নিয়ে মাঝখানে ওই নতুন দুলহনকে বসানো হতো। তারপরে সবাই আরব के लोग আসতো, ऐसे मेरा देखो ये हजरत अब्बास की माँ, ये अली की बीवी है, ये अली की शरीक हयात है। लेकिन उम्मुल बनीन ने क्या कहा? उम्मुल बनीन जाके उस मसनद पर नहीं बैठी। इमाम हसनैन बीमार थे, हसनैन अपने हुजरे में थे। उम्मुल बनीन ने कहा मेरे शहजादे हसन और हुसैन कहाँ हैं? कहा बीमार है। पहले उम्मुल बनीन गई, हसन और हुसैन के पैरों पे हाथ रखा, शहजादो हम माँ बन के नहीं आए हैं, हम आपकी करीज बन के आए हैं। ए शहजादो हम आपकी नौकरी के लिए आए हैं, हम आपकी खादमा बन के आए हैं, हमें कभी माँ कह के ना पुकारना, न हम माँ बन के आए। और कहीं भी जब मजलिस होती है, माँ বোনরা যখন আপনারা বসে আছেন না, মজলিস শুরু হলেই না একটা বিবি আছে যার বাজার ভাঙা হয়েছিল, কাঁদতে কোনোদিন লজ্জা করবেন না।
কোনদিন লজ্জা করবেন। জানেন ইমামে জামানা আমাদের এখানে বসেই না খুনে আঁসু হয়, খুন থেকে ওনার চোখ থেকে খুন বেরোয়, রক্ত বেরোয় যখন উনি কান্না করে। तो इमाम ज़माना की जिक्र करा हलो, इमाम ज़माना आप ये बताइए कि आपका किस पर खून के आंसू रोते हैं? क्या हुसैन को शहीद किया गया? क्या नहीं? क्या अब्बास के बाजू काटे गए? क्या नहीं? अली अकबर के कलेजे में बच्ची की अनी तोड़ दी गई? क्या नहीं? और मोहम्मद को मारा गया? कहा नहीं? क्या कासिम को पामाल किया गया? क्या नहीं? खैमों में आग लगा गई? क्या नहीं? তারপরে কানতে শুরু করলেন। কিসে আপনি কানেন? কারণ কন্যা করলে আপনার চোখ থেকে রক্ত বেরো যায়। ইমামে জামানা কা আমি যখন শুনেছি, দেখুন আমার চোখে যখন আমার কানে সাকিরদের आवाज आए ना कि ज़ैनब की चादर छीन ली गई ना, चादर छीनना था कि मेरे आंखों से खून निकल जाता। মা বোনরা আপনারা যেখানে বসে আছেন না, একটা হোর করবেন না। যেখানে মাইলি শুনে না যার ফাজান ভাঙা হয়েছিল, जिसकी पसलियां तोड़ दी गई थी ना, মা ফাতেমা আপনার থেকে আগে এসে ওখানে বসে যাননি। আপনারা যেখানে বসে আছেন আজকে উম্মুল বনিনকে পরশা দেবেন না, আজকে বলবেন মা ফাতেমা আপনার ছেলে আব্বাসের পরশা দিতে এসেছি। পাশে ওখানে উম্মুল বনিনও বসে আছেন। তারপরে আর দেখুন যেখানে মজলিস হয় না, আমরা পড়েছি मजलिस होता है, जब कहीं मजलिस होती है ना, ये बीवी पसलियां संभालते हुए पहले जनाब ज़ैनब के पास आती हैं। जनाब ज़ैनब के पास, उसके बाद ये दोनों बीवियां ছোট বাচ্চা জনাবে সকিনা কাছে সবাই আদুনা আসেন। আর জনাবে সকিনাকে এসে বলেন সামনে, এ সকিনা চলো চলো মজলিস চলো। বলে কোথায় যাবো ফুফি আম্মা? कि তোমাদের কনিজ আর তোমাদের আজাদার না मजलिस से कांटा है, मजलिस से चले इससे आजादारों का होते हैं ना। ए मेरी माँ बहनों, जब हम चिल्ला के रोते हैं ना तो सकीना पूछती है, ए दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे चचा को याद करके रो रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब कहती है ये तुम्हारे बाबा के आजादार है। तो सकीना कहती है काश ये करबला के मैदान में होते तो मेरे बाबा को ज़िबा नहीं किया जाता। आवाज लगा लो। अरे आज कोई तुम्हें तमाचे नहीं मारेगा रोने पर, आज कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जब सकीना कहती थी ना हे मेरे चचा गाजी, तो उसे तमाचा मारा जाता था। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अरे कान्ना को आज के मोहरे में हाथ तरीक नहीं कर रहा। कागज सामने साथ कौन जिंदा रहेगा जो बाबुल हवाइज के मसाए पढ़ेगा? अब कौन है जिंदा रहेगा जो बाबुल हवाइज पे रोएगा? जाने एक हजरत अब्बास যার ছোট ভাতিজির নাম হচ্ছে সকিনা। আমি মাকাতিলে পড়েছি না, সকিনাকে যখন জ্বর লাগতো না, সকিনা নহরে ফরাত দেখে দেখে করতো চাচা তুমি চলে গেলে, তোমার যাওয়ার পরে এসে জ্বর মারছে, মুখে জ্বর মারছে। কিরকম জ্বর মারতো জানেন? ছোট বাচ্চা আমাদের বাড়িতে আছে, আমার মেয়ে আছে, একদম রেগে আমি ঝড় মেরে দিলাম। কি বললো জানেন? বাবা মালিশ পড়ে না? হ্যাঁ মালিশ পড়ে। বাবাকে বলে তো মুখে জোর মারবে, মুখে জোর মারলে অনেক ব্যথা হবে। আপনারা বরদাস্ত করতে পারবেন না? সৈয়দ
नहीं मारेगा, तुम्हारे चचा का परसा देगा। এই হযরত আব্বাস আজাদার যখন মদিনা থেকে কাফলা চললো না, উম্মুল মুমিনিন আসলেন, আকা হুসাইন হ্যাঁ একটা কাজ করো। দেখলেন कि उम्मुल मुमिनीन चले আসছে, काफला को रोका गया। क्या बात है, अम्मा क्यों आई हो? माँ मेरे लाल आका थोड़ी देर के लिए अब्बास को मेरे साथ थे। अब्बास इधर आओ, माँ बुला रही है। माँ लेकर गई, कहाँ लेके कोथा लिए गए? उम्मुल मुमिनीन लिए गए एक जगह ले जाके कब्र रसूल पे एक हाथ रखा, एक हाथ अपने सर पे रखा। अब्बास একটা বড় তোমার একটা हाथ কোথায়? कहा कब्र रसूल पे रखा हुआ है। कहा दूसरा हाथ कहाँ है? अम्मा आपके सर पे रखा हुआ है। अब्बास ख्याल रखना, ज़ैनब साथ जा रही है, उम्मे कुलसूम साथ जा रही है। ए अब्बास ख्याल रखना, मेरा हुसैन साथ जा रहा है। ए अब्बास ख्याल रखना, 4 साल की सकीना साथ जा रही है। मातम करो दादा, शर्माओ नहीं, रुखसारों को पीटो। ए अब्बास आकर देखो, ये माँ बहने, ये दादा तुम्हारे मसायब पर अरे टूटी हुई पसली हवाले परसा पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। रोलो दादा, रोलो रोलो, शर्माओ नहीं, रोना ना है ना, सर को झुका के चिल्ला के रो। इसलिए के ए माँ बोंदा, माँ फातिमा का बोले की बोले छिले, माँ फातिमा बोले छे ऐसे रोया करो जैसे एक ज़ईफ माँ अपने जवान बेटे के जनाजे पे रोती है। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला की। अब सुने, अब्बास आ गए, बेशी मशाल बोलो ना। अब्बास कितने बहादुर लोग छिले, ऐसा बहादुर है। माँ बोल रहा भाईदा काका बोलो लोग तुम्हार काछे छोटो बाच्चा ऐसे अगर बोलले আমার পিপাসা লেগেছে কি করবে? মা বললা তোমার কাছে কোনো ছোট বাচ্চা ছোট মেয়ে এসে বললো আমার তোমাকে চিনি না আমি, লেকিন আমার পিপাসা লেগেছে, আপনারা কি করবেন? जरा सोचो, सकीना जब हज़रत अब्बास के पास आके कहती थी ए चाचा अलाताज अलाताज अलाताज, ऐसे अब्बास से बर्दाश्त किया रो 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 चिल्ला के रो, आवाज बुलंद करो, दादा रो, ज़माना रो रहे, कहीं काते इमाम रो रहे, कहीं ज़ैनब रो रही है। अल्लाह कोई गम न दे। उसके बाद अज़ादारो अब्बास बैठ कर रो रहा है। जनाब ज़ैनब आने के बाद कहा आका सब मंजूर है, अब्बास का रोना मजबूर नहीं है। कलाई पकड़ा लेके आए, आने के बाद कहा भैया मुझे मालूम है ना ये अब्बास क्या है, अब्बास का रोना बर्दाश्त नहीं है। कहा अब्बास मरने की इजाजत मांग रहा, उसे मरने की इजाजत नहीं। इतने में सकीना ने मशकीज़ा लेके सकीना आई, आकर देखा चचा को, चचा आला थश चचा आला थश, चचा बहुत प्यासी लगी, चचा कलेजा बुल रहा है, चचा आवाज नहीं निकल रही।
پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، سنبھال کے بیٹھنا، کہیں اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ازادار عباس دریا پہ گئے، مسائل نہیں پڑھنا، عباس دریا پہ گئے، مشکیزہ چھل گیا، ادھر سکینہ چھوٹو چھوٹو بچہ دیکھے نا، کچھے ٹکے نیے چھے، گھبراؤ نہیں، آ جاؤ، گھبراؤ نہیں، آ جاؤ۔ আমার কাকা যে আছে না চাচা গেছে পানি আনতে গেছে, চাচা পানি নিয়ে আসবে আবার। ছোট ছোট বাচ্চা হাতে কুলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেলাল সেকিনার কাছে, সেকিনা কাকা চাচা পানি নিয়ে আসবে না, হাতে পানি আনতে গেছে না। আল্লাহ দাস, আল্লাহ দাস, আল্লাহ দাস, এতে সেকিনা কি দেখলে? আল্লাহ মার रहा है, আল্লাহ उदार नहीं, दौड़ी हुई गई, ए चाचा है बाबा, मेरा चाचा कहाँ है? आवाज दी, चाचा परात पे, बाजू के दार, सो रहा है। रो 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 रो, अरे मामे समाना, आओ देखो, हम परसा पेश कर रहे हैं, ए बीबी सैयदा, आओ हम परसा पेश कर रहे हैं, ए बीबी सकीना। अज़ादारो, बस आखिरी जुमला है, बस मसाइल तमाम। ये कौन है? अब जनाब सकीना पे दो जुमले सुने बस। पहले मौला हुसैन पे सुन ले, बहुत रोए आप और रोएंगे, जब जब याद आएगा ना तब तब रोएंगे। ये बताइए इमाम हुसैन को कितने ज़रबों में ज़िब्ह किया गया था? क्यों रो मातम करो ना जो रुखसार को पीटो ना, फातिहा का घर मिला गया, अब्बास मारा गया, अली अकबर मारा गया, और मोहम्मद मारे गए, अली असगद मारा गया। जानते मैं भी सुबह से मजलिस पढ़ रहा हूँ, कल रात से 16 घंटा नाइट ड्यूटी की, अभी तक सोया नहीं हूँ। कल रात 8 बजे ड्यूटी गया था, आज 12 बजे निकल के उस वक्त से मजलिस से पढ़ा और यहाँ तक आया हूँ। मैं कहता हूँ शहजादी कलेजे में जितनी ताकत और दे देना, जब तक जिंदा रहूँ 1 घंटा अगर सोना न भी मिले, तुम्हारा जिक्र मिले, जिसमें मैं हुसैन पे आंसू मारूं। अब सुनो, बर्दाश्त न कर पाओगे। जब जब भी যখন যখন না এই মশাইটা মনে করবেন না, এখান থেকে বাড়ি পর্যন্ত করে গেলে না, আবার মনে করতে গেলে কানে কেঁদে কেঁদে যাবেন। বাড়ির লোক জিজ্ঞেস করবে কেন কাঁদছো, কি হয়েছে? আমার মৌলানা মশাই পড়েছিল, কিরকম মশাই জানেন? सबसे ढारस कौन था? सैदानियों का ढारस अब्बास, अली अकबर का ढारस अब्बास, बेवाओं का ढारस अब्बास, कासिम का ढारस अब्बास, सकीना का ढारस अब्बास, उम्मे कुलसूम का ढारस अब्बास, हुसैन 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 का ढारस। सुना दादारो, जब शमर ने पहला खंजर चलाया, हुसैन ने कहा अम्मा, अम्मा, ए अम्मा, शहजादी ने कहा पास में हूँ, अली ने हाथ पकड़ रखा है। फिर उन्होंने खंजर चलाया, 12 ज़रबों में खंजर चलाया, फिर खंजर चलाया, खंजर चलाया। हुसैन ने कहा नाना, नाना, मालूम करो, खालो तो भीगा नाना, अरे फातिमा का घर हो गया नाना। उसके बाद दूसरे खंजर में कहा नाना,